35 বছরের অপেক্ষার অবসান, মৃত ভেবে যাকে শেষকৃত্য পর্যন্ত করে ফেলেছিল পরিবার, সেই কিশোরী মাঝবয়সী মানুষ হয়ে ফিরে এলো নিজের জন্মভিটে। মালদার কালিয়াচকের নওদা যদুপুর এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো রবিবার। 13 বছরের কিশোর জাহিদ কাজের সন্ধানে গিয়েছিল পাঞ্জাবে। সেখানে দলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। গুরুতর আহত অবস্থায় বছরভর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল সে। সুস্থ হওয়ার পর বারবার পরিবারকে খুঁজতে চাইলেও যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। এরপর পাঞ্জাব থেকে দিল্লির গাজিয়াবাদ কাজ, সংসার, বিয়ে, সন্তান সবকিছুই চলছিল নিজের মতো। কিন্তু ভাগ্যের ফের হঠাৎই পরিবারের সন্ধান পান তিনি। আর খবর পেতেই 35 বছর পর স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে ফিরলেন নিজের বাড়ি। দীর্ঘ 3 দশকের বেশি সময় পর ছেলে ফিরে আসায় আবেগে ভাসছে পরিবার ও স্থানীয় মানুষজন। জাহিদের কথায় অনেক বছর পর বাড়ি ফিরে ভীষণ ভালো লাগছে। এক জীবন্ত অলৌকিকতার সাক্ষী আজ নওদা যদুপুর। कल कैसे लग रहा है आने के बाद? सही लग रहा है। यहाँ नहीं पाएंगे आप? गाजियाबाद छोड़कर यहाँ रहेंगे तो नहीं पाएंगे आप? रहने को तो हर जगह रह जाते हैं, आप जरूरी है कि एक ही जगह रह जाऊं? यहाँ पे आने के बाद यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है? सही लग रही है, सही है। এখানে আমাদের নয়াগ্রামেরই বাসিন্দা। ও 35 থেকে প্রায় 35-36 বছর আগে এখান থেকে চলে গেছিল কাজে। তারপরে 35 থেকে 36 বছর পর আবার ফিরে এসেছে। যেটা বাড়ি থেকে চলে গেছিল সেটা মানে কি বাড়ির ফ্যামিলির লোক খোঁজাখুঁজি করেছিল? হ্যাঁ, খোঁজাখুঁজি অনেক করেছে। কি ভেবেছিল আর কি তখন? এতদিন পরিবারের লোক কি ভাবছিল? পরিবারের লোক আপনার না পেয়ে ওকে ছেড়ে দিয়েছিল যে ও আসবে কি না। কি অবস্থাতে এসছে ও? ও এখন যাওয়ার পরে অসুস্থ হয়ে গেছিল, কিন্তু তারপরে ওর একটা হাত আর একটা পা অ্যাক্সিডেন্ট মানে হয়ে গেছিল আর কি। কোথায় গিয়েছিল, কোথায় থাকছিল এতদিন কিছু জানা গেছে? ও তো হায়দ্রাবাদ বলছে, গাজিয়াবাদ। কি ওখানে বিয়ে টিয়ে করে নিয়েছে? বিয়ে করেছে না, বিয়ে করেছে। এভাবে জানতে পারেন যে এটা আপনারই ভাই, এতদিন থেকে তো ছিল না বাড়িতে। ও আসলো, বললে যে ওই 13 বছর পালিয়ে গেছিল, কাজে গেছিল। কাজে যাওয়ার পর ওখান থেকে নিয়ে যার সাথে কাজে গেল ওর থেকে নিয়ে মোটামুটি 1-1.5 মাস পর পালিয়ে গেছিল। পালিয়ে যাওয়ার পরে ও পাঞ্জাবে কিন্তু একজনের বাড়ি থাকছিল। থাকতে থাকতে ওখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছিলো। অ্যাক্সিডেন্টের পরে ও হসপিটালে মোটামুটি ও থাকে 1 বছর। 1 বছর পর একটা জান পহচান মানুষ ওখানে নিয়ে গেল। নিয়ে যাওয়ার পরে ওর বাড়িতে থাকতে লাগলো আর বাড়ির কাজ কাম করতে লাগলো, খেতে বাড়ির কাজ কাম করতে লাগলো। করার পরে যখন ওর বাবার মা মারা গেল তখন একে বের করে দিল বাড়ি থেকে বের করে দিল। তখন ও আস্তে আস্তে ও গাজিয়াবাদ এসে গেল। এসে যাওয়ার পরে ও এই জান পহচান করতে থাকতে থাকতে ওখানে কিন্তু জান পহচান হয়ে গেল। কাজ করতে করতে এই বিয়ে শাদী করেছে। ওখানে মোটামুটি ও 35 বছর কাটিয়ে নিল। घर पे यहाँ घर पे रहे मैंने 12-13 साल घर पे रहे, 35 साल मैंने बाहर रहे। कहाँ में थे? गाजियाबाद, दिल्ली गाजियाबाद। हाँ। कितना आप इतना दिन से घर से किसी का साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा? कोई ताल्लुकात ना थी मेरी जानकारी में। एक्सीडेंट हो गई थी मेरे पंजाब में। एक्सीडेंट होने के बाद फिर मेरे बेहोश पड़ा था 1 साल। मुझे ये पता नहीं घर द्वार, होश आने के 2 साल बाद होश आया। होश आने के बाद मैंने चल भैया बुझने लगा तुम्हारे जो घर में कोई है, कहीं गांव है ना है, निकान कलकत्ता से और कोई गांव, जोधपुर गाँव जिला, मालदा जिला है, जोधपुर है मेरा गांव, नागराम गांव है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है। सब चिट्ठी भेजी मैंने घर लिखवा के मालिक से। मालिक करे यार तेरा तो चिट्ठी मैंने 10 दफ़ा भेज दे, ये वापसी आ गए। बस कैसे करोगे?
ये कैसे करना कि भैया रहने दो, अब चिट्ठी ने अब मैं काम वाम करेंगे, मैंने तो नहीं करेंगे, घर जाऊंगे। इतने में बीमार पड़ गए और बुरी तरह के, ना बचने की उम्मीद से। फिर बालक शादी हो गए, बालक नन्हे हो गए, फिर आना ना हो रहा, आने की उम्मीद बथेरे करे मैंने। कितना साल पहले चिट्ठी लिख रहे थे आप? ये चिट्ठी लिखी थी मैंने करे 20-25 साल पहले। यहाँ से गांव से जाने के बाद में 2 साल बाद चिट्ठी लिखी मैंने। तो अचानक ऐसा क्या ख्याल चलाया कि आप घर चलाए? अचानक घर इन बालक ने, पापा तुम्हारा पापा मम्मी तो है, चलो पापा मम्मी ना भी होंगे ताऊ तक चचे है तो हमारे नहा है, तुम पहले घर जाओ, गांव जाओ। गांव से ये तो पता लगा हाँ मेरे पापा के भैया बंधु सब है, ग्रुप तो हो गए मेरे यहाँ ना, तेरे ताऊ भी है, सब चचा भी है, सब है। आपका वहाँ फैमिली में कितना मेंबर है अभी? फैमिली हमारे 7 बच्चे, एक भी। टोटल 9 मेंबर है। हम लोगों ने सुना कि जब यहाँ एफआईआर हो रहा है इसके लिए आप चले आए हैं यहाँ, ऐसा खबर मिला हम लोगों को। ना ना, ये आया मैं अपने घर की वजह से, घर में मेरा भैया भावज है, मैं उन्हें से तो मिल के आऊँ कैसे भी, तो इसी वजह से मैं जाता। इतने साल हो गए मैं गया ना, पापा मम्मी तो मिल लगा ना मुझे, भैया भावज से मिलेंगे, उसके लिए तो मुझे जाना जरूरी है। एक ग्रुप तो होगी, मैं पहचान तो है, अब इनसे मुलाकात भी हो गई, अब मैं जाऊंगा भी तो इनसे नंबर लेकर बात करता है, हर साल आऊँगा फिर मैं। कौन आए हैं आप? यहाँ मेरा घरवाली है, लड़की है, लड़का है, ये बैठा घरवाली। आप जो गाजियाबाद में रहता वहाँ का के वोट सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गया था क्या? जो दिल्ली में रह रहा था आप? ना मैं तो रह रहा था पहले जहाँ वोट बने मेरा हापुड़ में। हाँ वहाँ भी वोट देते हैं आप? हाँ वहाँ भी वोट देते, वहाँ भी बाप माँ का बाप का नाम है, वहाँ भी सब चीज़ें वहाँ भी मेरे। पर यहाँ आया मैं किसी वजह भाई की वजह से। कैसा लग रहा है आने के बाद यहाँ? यहाँ तो बढ़िया लग रहा आने में, यहाँ आने में महसूस किया बढ़िया, मैं ऐसा लग रहा आदमी देखने के लिए आते हैं, इसी वजह से यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने देश में आएंगे, अपने घर आएंगे। अभी तो घर पे आया थे, यहाँ पे रहेगा या दिल्ली चला जाएगा वापस? फिलहाल के अभी फिलहाल तो बच्चा वहाँ है मेरे, अब तो जाने पड़ेंगे कि बच्चे को लेकर ना आए सारे, अभी 5 बच्चे वहाँ हैं, तो इसी की वजह से मुझे जाने पड़ेंगे। अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहेंगे अभी, रहने के बाद चला जाएगा? ना हमेशा के लिए तो ना जाने, बच्चा को लेकर आऊँगा फिर यहाँ पे हमेशा रहने का? फिर यहाँ हमेशा यहाँ रहेंगे। वहाँ क्या मतलब, फिर मैं किराया दूँगा 10,000 रुपये महीने के। वहाँ पे क्या करता था? वहाँ कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में काम करे, सप्लाई। क्या नाम आपका? जाहिद नाम है जी।